Okay, screen is now visible. No, Yes, Harleen, not visible. yes, ma'am. Now it is visible. Okay. So now in the last, all of you just listen carefully. In the last class, we have discussed about the male and the female reproductive system. Okay. So today we will discuss the fertilization. Okay. And the post fertilization changes that takes place. Okay. In the human, in the female body, and in the development of that zygote. Okay, fertilization mean the formation of zygote. So after that there is a development of that zygote. Okay, so today we will discuss the development of zygote in the female body. Okay, so now just look into the picture. There is implantation. First of all you must know ki what is fertilization. Okay, so the fusion of male and the female gamete is called as the fertilization. Okay, we have discussed in last class ki how gametes are formed in male and body and in the female body. Okay, जब आपने male और female reproductive system discuss किया था, we have discussed about the male and the female reproductive system. In that we have discussed ki how male and female gametes are formed in the male reproductive system and the female reproductive system. So after that there is a zygote. Okay, so there is fertilization means the formation of zygote. So when male gamete fuses with the female gamete, it forms a zygote that is also called as a fertilized egg. Okay, so in the last class I've told you that fertilization is takes place in the fallopian tube. Okay, you know this thing ki ova is released from the ovary, it goes to the fallopian tube, the sperm, the male gamete reaches to the fallopian tube. Okay, वो female reaches to the fallopian tube, तो ओवा जो है वो भी fallopian tube तक पहुंचता है, जो sperm है it also reaches to the fallopian tube, and finally there is a fertilization and the formation of zygote. Now you can see in the picture, okay, zygote और fertilized egg, zygote को fertilized egg भी बोलते हो. Okay, moves from the fallopian tube towards the uterus. अब zygote जो बना वो कहाँ बना? fallopian tube के अंदर. Now it has to move to the uterus, क्योंकि uterus के अंदर इसकी proper development हो सकती है. Okay, from the fallopian tube towards the uterus and attaches itself into the wall of the uterus. Okay, और uterus की wall के साथ अपने आप को attach कर लेता है. This fixing of fertilized egg in the lining of uterus is called as implantation. Okay, तो जो fertilized egg है वो ऐसे नहीं घूमता रहेगा, it should be fixed with the lining of the uterus. Okay, so that process, the fixing of the fertilized egg, or you can say the fixing of the zygote in the lining of the uterus, is called as a implantation. Okay, अब उसने कहा before implantation the zygote divides several times by mitosis to form an embryo. नाउ जस्ट रिमेंबर कि जाइगोट ही जाके सीधा नहीं वहां पे फिक्स हो जाता. ओके, जाइगोट बिफोर फिक्सिंग टू द यूट्रस डिवाइड सेवरल टाइम, वो सेवरल टाइम डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस. ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि यहाँ मियोसिस नहीं होगी. जो जाइगोट है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन करेगा, क्योंकि बिकॉज यू नो कि जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड. अब उस जाइगोट से पूरा जो बेबी बनना है, पूरा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, पहले एम्ब्रियो बनना है फिर बेबी बनना है. ओके, सो जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, जिसको आप माइटोसिस बोलते हो. ओके, नाउ टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. नाउ उसने इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑकर्स ऑन द occurs on about the 7th day after fertilization. मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के 7th डे पे जो है, आफ्टर 7th डे और 7th डे पे जो एम्ब्रियो बनता है, इट गेट्स फिक्स्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस. ओके, सो बिफोर दैट व्हाट इट विल डू कि वो क्या करेगा, उससे पहले जो जाइगोट बना है सिंगल सेल्ड, वो रिपीटेड डिवीजन करेगा, मोरूला बनाएगा, ब्लास्टूला बनाएगा. मोरूला हो गया 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, तो ऐसे करके डिफरेंट उसकी स्टेजेस आएंगी. ओके, सो आफ्टर 7th डे जो है वो गेट्स इम्प्लांटेड. नाउ उसने कहा इट ऑकर्स व्हेन अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में डिफरेंट स्टेजेस है. जैसे जाइगोट है, जाइगोट से मोरूला बनता है, मोरूला की 16 सेल स्टेज होता है. देन उसके बाद ब्लास्टूला की फॉर्मेशन होगी, और जो ब्लास्टोसिस्ट है, और आपने ये देखना है कि कौन सी वाली स्टेज पे वो जाके अटैच होता है यूट्रस के साथ. सो रिमेंबर दिस थिंग, इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द एमसीयू में स्पेशली, कि इट ऑकर्स, जो इम्प्लांटेशन है वो कौन सी स्टेज में होती है. इट ऑकर्स जब when the blastocyst stage in the development of the embryo gets attached to the inner lining of uterus, that is the endometrium. तो यूट्रस की इनर लाइनिंग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम. यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, द इनर वन इज द एंडोमेट्रियम. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि जो जाइगोट है
डिविजन्स करके जब उसकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, उस स्टेज पे वो जाके यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच होता है. एंड विच लाइनिंग? द एंडोमेट्रियल inner lining of the uterus is the endometrium. Okay, and the embryo starts developing on the uterine wall. At this stage you can say a woman is said to be a pregnant and the phenomena is called as a pregnancy. Now you can see in the picture also कि ये देखो zygote undergo mitosis to form an embryo. ये रिपीटेड माइटोटिक जो है, यहाँ से देखो जाइगोट है, ये डिवाइड करेगा माइटोटिक डिविजन्स, और एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस आफ्टर द 7th डे ऑफ प्रेगनेंसी पे. आफ्टर द 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो अटैच हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग के साथ, मीन्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ. ओके, नाउ अब उसने क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ये तो हो गई फर्टिलाइजेशन, हो गई इम्प्लांटेशन, हो गई. देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? ओके, तो उसने क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द मदर्स यूट्राइन वॉल थ्रू प्लेसेंटा. यू नो कि जो एम्ब्रियो है उसकी अटैचमेंट होती है मदर की यूट्राइन वॉल मीन्स एंडोमेट्रियम के साथ थ्रू द प्लेसेंटा. ओके, नाउ प्लेसेंटा जो है उसके कॉर्ड का एम्ब्लिकल कॉर्ड कनेक्ट द प्लेसेंटा विद एम्ब्रियो. अब जो एम्ब्रियो है इट इज अटैच टू द यूट्राइन वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. लेकिन उसका प्लेसेंटा जो है, कॉर्ड जो है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा को और यूट्राइन वॉल को कनेक्ट करता है. ठीक है, प्लेसेंटा और जो प्लेसेंटा जो है इट इज अ कनेक्शन. यू नो कि प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन, बट प्लेसेंटा के साथ एक छोटी सी एम्ब्लिकल कॉर्ड होती है. एम्ब्लिकल कॉर्ड जो है उसका, यू कैन सी हियर एक कॉर्ड का एम्ब्लिकल कॉर्ड जो है, छोटी सी कॉर्ड है दैट कनेक्ट द प्लेसेंटा विद एम्ब्रियो. वो एम्ब्रियो को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है, और प्लेसेंटा जो है फिर एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट होता है इन दिस वे. ओके, सो प्लेसेंटा इज बेसिकली फिजियोलॉजिकल कनेक्शन. ओके, फिजियोलॉजिकल क्यों? क्योंकि बेसिकली वो फंक्शन भी कर रहा है, उसकी न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन सारे काम कर रहा है. सो इज अ कनेक्शन बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल टिश्यू, मदर के टिश्यू के बीच में और फीटस के टिश्यू के बीच में. ओके, नाउ उसके क्या, प्लेसेंटा इज अ डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल. प्लेसेंटा जो है बेसिकली क्या होता है कि एम्ब्रियो से छोटा सा क्या निकलेगा, एम्ब्लिकल कॉर्ड. एम्ब्लिकल कॉर्ड किससे कनेक्टेड है? प्लेसेंटा से. एंड प्लेसेंटा जो है वो कनेक्ट होगा यूट्रस की वॉल के साथ. सो जस्ट रिमेंबर कि प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस. ओके, और प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कैसे जुड़ा हुआ? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एम्ब्लिकल कॉर्ड. ओके, अब उसने कहा इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, ये पूरी जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जो एक्सक्रीशन होती है वेस्ट की इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय प्लेसेंटा. मतलब कि जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव होता है. Thus it acts as a barrier for the growing embryo to disease causing organisms. ठीक है, तो इट इज उसका बैरियर है फॉर द ग्रोइंग, मतलब बेसिकली ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को हर वे में प्रोटेक्ट कर रहा है. Now, this is important कि the development of embryo inside the uterus till the birth of the baby is called as gestation period. ठीक है, उसको आप gestation period बोलते हो. The development of embryo inside the uterus. Zygote से लेके the whole development, जो whole development होती है, उस whole development को बोलते हो. Zygote से, from zygote से till the birth of a baby. Baby के birth तक जो whole development का process है, उसको, उस period को आप बोलते हो gestation period, and is considered to be of 280 days or 9 मंथ. ये 280 डेज का होता है या फिर 9 मंथ का. ठीक है, 280 डेज भी बोल सकते हो, 9 मंथ्स भी बोल सकते हो. एंड at last the child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus which gradually pushes the baby out of the mother's body through vagina. और जब लास्ट होता है, जब बेबी की पूरी डेवलपमेंट हो जाती है आफ्टर 9 मंथ, तो जो यूट्रस, जो चाइल्ड है वो बॉर्न, से चाइल्ड बॉर्न एज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. तो यूट्रस की मसल्स जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे बेबी जो है उसमें पुशेस out of the mother's body through the vagina. Okay, and the process of giving birth to a baby is called as a parturition. और जो प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो है डिलीवर होता है, बच्चा जो बॉर्न होता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? पार्चुरेशन. and till birth the baby is attached to the placenta by the umbilical cord, but the cord has to be tied and cut to separate the baby from the mother. Okay, तो जब तक जो है कि बेबी उसने till birth baby is attached to the placenta by the umbilical cord, birth तक. Okay, so now this is important कि first of all you must know कि what is placenta. Placenta is a physiological connection between the fetal and the maternal tissue. It is connected to the embryo with the help of the umbilical cord. Okay, and gestation period means the development of embryo जो यूट्रस के अंदर है till the birth of a baby, that is called as a gestation period, and the giving birth, process of giving birth to a baby is called as a parturition. Okay,
Yes, is this clear? Just give me the response. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज मैम वेरी वेरी सिंपल कि यू मस्ट नो कि जाइगोट बन रहा है, जाइगोट में आगे रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो रही है. वन मोर थिंग इज देयर कि excuse me जो ma'am. यस यस से Ma'am, the zygote divides into means many embryos, right? नो नो नो, नॉट मैनी एम्ब्रियोज डियर, जाइगोट डिवाइड मैनी टाइम टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल. वो बॉल ऑफ सेल बनाता है, तो उस बॉल ऑफ सेल को आप मरूला बोलते हो. ओके ओके, आर यू गेटिंग? Yes ma'am. ओके, सो जो जाइगोट है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स करेगा, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यू नो कि जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल. ओके, डिप्लॉइड सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है एंड इट शोज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. एंड वन मोर थिंग इज दैट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुई तो सिंगल डिवीजन होगी ना, रिपीटेड जो बार बार माइटोटिक डिवीजन हो रही है उसको क्लीवेज बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लीवेज. ओके, और उससे क्या बनता है, मोरूला बनता है. मोरूला जो है दैट इज अ बॉल ऑफ सेल, और वो बॉल ऑफ सेल जो है फिर वो पूरे जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, बेबी के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं. उसमें बेसिकली उसके बाद क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन, एक और प्रोसेस है. ब्लास्टुलेशन के बाद एक और प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रुलेशन. ओके, जस्ट रिमेंबर कि मोरूला बना, देन जो है आपका गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन होती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रुला? गैस्ट्रुला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. तो बेबी के जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं. ओके, सो ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है. जस्ट रिमेंबर गैस्ट्रुला, GASTRULA, गैस्ट्रुला मींस द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. और फिर उन्हीं तीनों जर्म लेयर से बेबी का जो ईच एंड एवरी पार्ट विल डेवलप. ओके, उसका हर पार्ट जो है वो डेवलप होता है उन्हीं 3 जर्म लेयर से. और ये जो सेल्स है अंदर, इन्हीं से ये जो है वो बनाएंगे, वो जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन करेंगे. और उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन, एंड उस स्टेज को आप बोलते हो गैस्ट्रुला. एंड व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म. ओके, नाउ दिस इज अ फीचर ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसने कहा कि एट लास्ट जो है जो पहले फीचर्स क्या होते हैं मेंस्ट्रुएशन के और मेंस्ट्रुअल साइकिल के. बट जस्ट लिसन, मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इज डिफरेंट, दैट इज ऑफ ओनली 4 5 और मे बी समटाइम्स ज्यादा डेज का भी होता है. बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो पूरे 28 डेज का होता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डोंट थिंक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पूरा 4 5 डेज का. मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है दैट इज ऑफ 4 5 डेज. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट इज ऑफ 28 डेज. ओके, so the process of menstruation occur in female once after a fixed interval of 28 days, and usually one mature ova is released from either of the two ovaries into the fallopian tube. This is called ovulation, जिसको आप ovulation बोलते हो. Okay, remember the term, ये छोटे छोटे terms हैं, इनको याद रखना. Ovulation means the formation of ova, release of ova. Okay, not formation, release of ova is called as the ovulation. And before the release of ova, uterus prepare itself to receive the fertilized egg. अच्छा, उसने कहा कि ओवा के रिलीज होने से पहले यूट्रस है प्रॉपरली हर मंथ जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. ओके, so inner wall of the uterus endometrium become thick and spongy and full of blood vessels. So at that time वो जो 28 डेज का जो साइकिल होता है उसमें ओवा के रिलीज होने से पहले क्या होता है कि यूट्रस प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करता है. बिकॉज उसको क्या पता कि यूट्रस को क्या है कि उसको हर मंथ की उसको फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करना है. ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट आर द चेंजेस क्या होंगे उसमें, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की वो बिल्कुल थिक हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल. सो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग. एंड इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो देन जो fertilized egg है वो gets implanted in the uterus. But if ovum does not gets fertilized, the endometrium lining of the uterus slowly breaks and an unfertilized egg along with the endometrium lining comes out through vagina in the form of bleeding or menstruation. Okay, so if fertilized ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होता, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इन सिंपल टर्म्स यू कैन से कि फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, देन एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो
No? Hi. 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 Mhm. Hi. Hey, good. Mom has left the meeting. Mom is Yeah, that's true. Where is mom? Yes, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So now, उसने कहा after menstruation the inner lining of the uterus repair and become okay. Menstruation occur 14 days after the release of ovum and it lasts for about 2 to 8 days. ठीक है, 2 to 8 days की होती है. Now उसने कहा है after menstruation the inner lining of the uterus repairs and become ready to receive the next ovum again. तो after menstruation जब एक menstruation होगी, जब next time फिर menstrual cycle start होगा और after वन मेंस्ट्रुएशन देयर इज अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज का स्टार्ट होगा. तो उसने कहा इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है रिपेयर करेगा, बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओवम अगेन. ओके, एंड इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स आफ्टर 28 डेज. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे जो है ओवम फॉर्मेशन होगी. और अगर जो है ओवर रिलीज होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो और ज्यादा प्रॉपरली डेवलप होगी,
उसके अंदर पूरी डेवलपमेंट होगी बेबी की। ओके, यूट्रस की लाइनिंग जो स्पॉन्जी हो जाएगी, थिक होगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी उसमें। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है जो यूट्रस की, वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। यस, वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड एज अ मेनाक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेनाक बोलते हैं। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी पे जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको मेनाक बोलते हैं। और मीनोपॉज क्या होता है? द नेचुरल स्टॉपेज ऑफ मैचुरेशन इन अ फीमेल इज कॉल्ड एज अ मीनोपॉज। मीनोपॉज, ठीक है, जो स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुएशन उसको आप मीनोपॉज बोलते हो। एंड इसने कहा है जो मेनाक है मीन्स जो बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इट एक्चुअली मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन। The period between menarche and woman and menopause is the normal reproductive period in human females. Okay, so ये उसका 12 to 50 years का होता है जो पीरियड होता है menarche और menopause के बीच में। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज नो मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन। जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो है कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ना ही ओवुलेशन होती है, ना ही मेंस्ट्रुएशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बोथ दीज प्रोसेसेस रिज्यूम आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो जब प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट यू आर हैविंग द reproductive health. Okay, उसने कहा reproductive health refers to a state of body when a person is physically, mentally and socially fit to lead a healthy reproductive life. Okay, so reproductive health क्या होता है? next जो आपका topic. Okay, so we have done with the fertilization, the implantation होती है, then उसके बाद जो है development होगी, और development के बाद जो है parturition होती है, जो processes आपने देखे. Okay, so इधर यहाँ पे morula formation is there, then blastula है. ओके, ब्लास्टुला बनता है, देन इम्प्लांटेशन होती है, मींस यूट्रस के साथ अटैच होगा। उसके बाद जो है फिर गेस्टुरेशन होती है, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एंड जर्म लेयर से बेबी के पूरे जो है पार्ट बनेंगे एम्ब्रियो के। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ बर्थ ऑफ द बेबी, एंड उस प्रोसेस को आप पार्चुरेशन बोलते हो। एंड यू हैव लर्न कि कितने डेज का पूरी जो गेस्टेशन पीरियड है वो 280 डेज का होता है, या फिर आप बोल सकते हो 9 मंथ का ये गेस्टेशन पीरियड होता है। ओके, now reproductive health refers to a state of body when a person is physically, mentally and socially fit to lead a healthy reproductive life. ठीक है, जब एक पर्सन जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है फिट होता है टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, उसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हो। उसका सेक्सुअल मैच्योरेशन में बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में, बॉयज में 13 है, गर्ल्स में 11 है ईयर्स जिसमें प्रॉपर जो मैच्योरेशन हो जाती है। बट मैच्योरेशन इज नॉट अटेन्ड एट दैट एज, द बॉडी इज नॉट फुली कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इस स्टेज पे जो बॉडी है प्रॉपरली ये प्रोसेसेस नहीं कर सकती रिप्रोडक्शन के। ओके, सो अगर जल्दी हो जाता तो उसने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। सो बट जो मेन प्यूबर्टी जो है उसमें मैच्योरेशन जो है, सेक्सुअल मैच्योरेशन बॉयज में स्टार्ट होती है 13 और 11 पे। ओके, ये सिर्फ यहाँ पे इसकी क्या बिगनिंग है सेक्सुअल मैच्योरेशन की इन बॉयज एंड गर्ल्स। यू नो कि सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या है, हमने डिस्कस किया था कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट द चेंजेस इन बॉयज एंड चेंजेस इन गर्ल्स ऑल्सो। ओके, next you are having the population control. Okay, yes, voice is audible? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. अब ये जो है ये बड़ा सिंपल है, ये इजिली इन योर ओन वर्ड्स यू ऑल कैन राइट कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, व्हाट इज अ बर्थ कंट्रोल, हाउ वी कैन डू द बर्थ कंट्रोल, कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द पॉपुलेशन, जस्ट वेट, अगर लिमिटेड फूड हो, लिमिटेड शेल्टर हो, ये तो आपको पता ही है, मेडिकल फैसिलिटीज लिमिटेड हो, तो उससे इट बिकम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयर इज अ प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है तो मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि अगर प्रॉपर ये सारी चीजें प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं तो डेफिनेटली जो उसकी मेंटली, बच्चे की जो मेंटली और सोशली जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होती है।
और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी जो है मे अफेक्ट अ वुमेन हेल्थ एडवर्सली, ठीक है। एक तो पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, सेकेंडली अगर फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो रही है तो वो वुमेन की हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती हैं। So उसने कहा ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर चाइल्ड ऑफर सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन विच हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि प्रॉपर केयर जो है सो ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर चिल्ड्रन जो है वो माल न्यूट्रिशन मीन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो प्रॉपरली नहीं होगी। तो उसने कहा हाउएवर इट इज नेसेसरी, हम क्योंकि हमने बर्थ कंट्रोल पढ़ना तो हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द नीड, कि हमने बर्थ कंट्रोल क्यों पढ़ना है। ओके, सो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है that is important. So it is necessary to control one's family size to help reduce the size of population. There are various birth control methods to plan a family and keep pollution in control. So various methods हैं जिसमें हम birth control जो है वो पढ़ेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं और पॉपुलेशन उसके कीप पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। Okay, so first one is the family planning. Okay, I'm not discussing here because you all know what is a family planning. Okay, so it is written, you can read कि family planning is the practice of controlling the size of a family by creating awareness among people but the consequence about the consequence of rise in population. So family planning means कि जो normal जो लोग हैं family उसका कंट्रोल करना एक साइज को, कैसे क्रिएट कंट्रोल करना, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को नॉलेज देना है कि अगर ज्यादा चिल्ड्रन होंगे तो उनकी जो है उन्हें माल न्यूट्रिशन हो सकती है, उनमें प्रॉब्लम फिजिकली मेंटली वो हेल्दी नहीं होंगे। ओके, सो बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो बर्थ कंट्रोल को हम कैसे कर सकते हैं, बाय अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो उसने इट कैन बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड डिवाइसेस दैट आर अवेलेबल। सो दिस इज आवर टॉपिक कि हम contraceptive methods. Yes, voice is audible. Yes, ma'am. Yes. Okay, so उसने क्या, it can be achieved through the use of contraceptive methods and devices that are available. अब contraceptive methods क्या है? First of all, you must know कि what is contraception. Okay, so then we will discuss about the contraceptive methods. So you can see in the picture what is contraception. Okay, the method of prevention of unwanted pregnancies and giving gaps between birth of children during one's reproductive life is called as a contraception. ठीक है, उसको आप contraception बोलते हो। Means it is very simple कि प्रिवेंट करना अनवांटेड प्रेगनेंसी को या फिर गैप रखना जो बर्थ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ, उसको आप कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हो। एंड डिवाइसेस यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शंस आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उसको आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जैसे फर्स्ट इज गिवन इन द पिक्चर दैट बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड में जैसे कॉन्डम है, डायफ्राम ये है, सर्वाइकल कैप्स होती है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद दीज मेथड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल डिवाइसेस that prevents sperms from meeting the egg. ठीक है, तो बैरियर मेथड्स में ये चीजें आ गई। देन नेक्स्ट यू आर हैविंग द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या आता है, द मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी विदाउट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, डिवाइस और मेडिसिन। इसी का ओवुलेशन ऑकर बिटवीन 12 to 14 days before the menstrual cycle. Yes, who is this? Unmute yourself. Oh, sorry, mute yourself please. Okay, so उसका ovulation occur between 12 to 14 days during the menstrual cycle, before the menstrual cycle start. ठीक है, जो ovulation होती है वो होती है, just remember, just try to understand कि 28 days में, ठीक है, I'm talking about that 28 day को जो menstrual cycle I'm talking about that. Okay, उसमें जो 14th day पे आप ले लो, 12 या 14, मतलब usually you can take 14th day पे ovulation होती है, ओवर रिलीज होता है। Okay, सो अवॉइडिंग दिस पीरियड कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगर इस पीरियड को अवॉइड करो, इस पीरियड में अगर मतलब कि वो जो कपुलेशन है नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओके, क्योंकि ओवा जो है वो रिलीज होता है 14th डे पे, 14th उसके इस पीरियड को जो है 12 और 14 डेज, अगर इस पीरियड को अवॉइड किया जाए तो जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। दिस इज अ नेचुरल मेथड। Excuse me, ma'am. यस यस Ma'am, as you said, when the ova is released, the uterus starts preparing its linings to हाँ to cherish it. So, ma'am, the uterus starts preparing itself before the ova is released, or yes बिफोर द ओवा इज रिलीज। जो आपका 28 डे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूट्रस पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करता है। जो 28 डेज का साइकिल है ना, 28 डेज के साइकिल में जब आप हाई क्लास में पढ़ो तो आप वहाँ पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फॉलिकुलर फेज होता है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज आता है, बड़े सारे फेजेस है उसके अंदर। तो यूट्रस पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है, फिर जब ओवा रिलीज होता है तो ये नहीं मैं कह रही कि ओवा रिलीज हुआ उसके बाद उसने प्रिपेयर किया, नो दिस इज नॉट।
जो यूट्रस है वो पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करता है, फिर 28 डेज का जो 14th डे होता है, 14th डे पे ओवा रिलीज होता है, और जब ओवा रिलीज होता है तो अगर उस ओवा की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो डेवलप रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो 14th डे के कुछ दिन बाद, मतलब 10 डेज के बाद जो है वो यूट्रस की लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और ओवा अलॉन्ग विद ऑल द डेब्रिस मटेरियल जो है वो थ्रू द मेंस्ट्रुअल फ्लो वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। ओके, यस, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So next one is a surgical method. सर्जिकल मेथड है यूजुअली सेफ एंड परमानेंट, उसमें क्या सेफ होते हैं और ये परमानेंट होते हैं जो सर्जिकल मेथड होते हैं, रिवर्सिबल नहीं है कि अगर एक बार सर्जिकल आपने सर्जरी जो हो जाती है उसके बाद फिर एक जो वुमन है वो मतलब कि जो वो हो नहीं सकती वापस, जो है मेल में अगर है तो वो स्पर्म रिलीज नहीं कर सकते, फीमेल में है तो वो फेलोपियन, जैसे यू कैन सी कि टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर देयर, वन इज द वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ओके, वेसेक्टोमी क्या है कि स्मॉल पीस ऑफ वास्ट डिफरेंस इज द फीमेल इज cut and removed. The cut end of the vast difference are then tied. This process prevent the transfer of sperm. वो तो आपको बताइए कि टेस्टिस से जो ये स्पर्म डक्ट है, वेस्ट डिफरेंस जिसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, वही लेके जाती है स्पर्म को, और उस ट्यूब को कट करके रिमूव कर दोगे तो जो है वो स्पर्म जो है उसमें स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा, स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं होगा फ्रॉम द टेस्टिस टू द नेक्स्ट साइट। ओके, नेक्स्ट आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। Then tubectomy क्या, in this method a small portion of the fallopian tube is removed and the cut ends are tied with nylon thread. This prevent the transfer of egg to the uterus. अगर आप उसी का fallopian tube को रिमूव कर दोगे तो obviously fallopian tube ही तो ट्रांसफर करती है, उसी में तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो fallopian tube ही नहीं होगी तो egg की ट्रांसफर नहीं होगी, egg की ट्रांसफर ही नहीं होगी, so that is also a method, that is a tubectomy. But उसका surgical method should be performed under supervision of expert doctors to prevent infections. But remember, ma'am. surgical methods हैं, just wait, are safe and permanent. Okay, yes, tell, yes, say. Ma'am, so in this tubectomy, Mm. with the ova which is released, it goes to the fallopian tube, but it can't travel further. So what happens to that ova? Dear, ova is a single cell. ठीक है, ओवा क्या है, कुछ ओवा को बड़ा वो नहीं है, ओवा है तो मैंने आपको बोला कि उसका एक पीरियड होता है 2-3 डेज, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ओवा इज अ सिंगल सेल, बॉडी में बड़े सारे सेल होते हैं जो डेली जिनकी डेथ होती है, तो इन द सेम वे ओवा भी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है ओवा की, क्योंकि वो अपने पहुंचता ही नहीं है वहां पे। ओके, ओके, यस। Ma'am, then that is endometrium layer is also not formed. When? Ma'am, when you said that in the tuberculosis, हाँ so हाँ when we do, so that layer which it will not be formed. हाँ, एंडोमेट्रियम लेयर जो है ना वो कुछ केसेस में मतलब उस, अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, जब ये जो ट्यूबेक्टोमी होती है और वेसेक्टोमी होती है, इसमें जिन जो ट्यूबेक्टोमी है फीमेल्स में, तो उसमें क्या होता है कि आप बात करो मेंस्ट्रुएशन की, कि उसमें मेंस्ट्रुएशन होती है कि नहीं, एंडोमेट्रियम लेयर बन रही है, तो उनमें रेयरली क्या होता है कि कई बार मेंस्ट्रुएशन हो भी जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम लाइन थोड़ी बहुत डेवलप हो भी जाती है क्योंकि हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थोड़े बहुत, बट उसमें क्या है कि इसमें श्योरिटी नहीं है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जिनमें ट्यूबेक्टोमी होती है तो मेंस्ट्रुएशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ओके, क्योंकि सिर्फ हमने फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया है, तो फेलोपियन ट्यूब भी मतलब ट्रांसफर जो है, बाकी प्रोसेसेस तो हो रहे हैं ना, ओवर रिलीज, ओवर ट्रांसफर नहीं हो रहा वहां से वहां, तो जब ओवर ट्रांसफर नहीं होगा तो इन फीमेल्स में दोनों चीजें पॉसिबल है कि मेंस्ट्रुएशन मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बन भी सकती है नहीं भी बन सकती, मींस मेंस्ट्रुएशन जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट मोस्टली जो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है इसमें, क्योंकि बेसिकली स्टिमुलस क्या है, ओवम, ओवम का स्टिमुलस है, ओवर रिलीज हुआ, फिर आगे स्टिमुलस मिला, आगे आपके जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो फिर उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, और जो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की फॉर्मेशन के लिए वो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरोन है जो उसकी फॉर्मेशन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, तो अगर ओवर रिलीज नहीं हुआ तो जो प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन, हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रोजेस्टेरोन जो आपका हार्मोन है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसको उसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, लेकिन पहले भी प्रोजेस्टेरोन थोड़ा बहुत जो है सीक्रेट होता है, तो उसकी वजह से इन ये जो जिनमें ट्यूबेक्टोमी होती है तो उनमें ये चीजें हैं कि मेंस्ट्रुएशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट मोस्टली जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, मींस जो आप बोल रहे हो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग है मोस्टली वो नहीं बनती है। Okay, ma'am. ओके, सो नाउ नेक्स्ट मेथड क्या है, अबॉर्शन। ठीक है, उसका सर्जिकल
कंडक्टेड टू टर्मिनेट अनवांटेड प्रेगनेंसी की जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो प्रोसेस को आप अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमटीपी। ओके, रिमेंबर द टर्म एमटीपी। एमटीपी उसने कहा है नाउ लीगल। एमटीपी जो है वो लीगल होती है, लेकिन लीगल तब होती है उसने कहा कि अगर मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि जो है मदर, अगर उस मदर जो है वो प्रॉपरली नहीं, बेबी को उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तब उसमें जो है ये लीगल है। जैसे उसने लिखा है कि हाउएवर देयर आर केसेस वेयर पीपल आर यूजिंग मिसयूजिंग द मेथड ऑफ अबॉर्ट सेक्स सेलेक्टिव fetus for a healthy society the female male sex ratio should be maintained because of reckless female feticides due to prenatal sex। ये तो आपको पता ही है कि जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो पहले बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन करवा लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, उसके लिए भी प्रोसेसेस होते हैं। तो उससे वो क्या करवाते हैं, फीमेल फीटिसाइड्स। फीमेल फीटिसाइड्स मीन कि अंदर ही बेबी की जो है वो डेथ हो जाती है, जिसको आप ये बोलते हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बेसिकली ये होता है कि प्रॉपर ये होता है कि हाँ प्रॉब्लम है कुछ, अदरवाइज इट इज इलीगल। ओके, सो कुछ अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। However, it is prohibited by law in India in 1994 to prevent sex-selective termination of pregnancies। ये आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड की हेल्प से जो है लोग प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, बट अब जो है ये इनहिबिट किया हुआ बाय द लॉ 1994 से। ओके, सो दिस इज द मेथड्स। There are other methods. Yes. Ma'am, then we can. Yes, yes. Ma'am, that whenever a child is born, so when a mother is taken for ultrasound, so the doctors know that. Ultrasound. Yes. नो डियर, हर टाइम नहीं होता। जो बेसिकली क्या होता है कि इसमें बड़े प्रोसेसेस होते हैं, एक अमीनो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो डॉक्टर बेसिकली क्या करता है, जस्ट लिसन, कि अगर जो बड़े सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो टेस्ट करने होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली करते क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो डॉक्टर बेसिकली क्या देखता है कि वो जो क्रोमोसोम नंबर की पिक्चर देखता है, वो जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम है, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। उसको आप कैसे कर सकते हो कि 46 क्रोमोसोम है और 46 में अगर आपको वहां पे 46 क्रोमोसोम की पिक्चर आती है, बेसिकली जो डिसऑर्डर से आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ना, आजकल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि डिसऑर्डर्स है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे, तो 46 क्रोमोसोम की डॉक्टर जो पिक्चर होती है, जो हमारा एक प्रोसेस है अमीनो सिंथेसिस, उसमें वो 46 जितने क्रोमोसोम है उनकी पिक्चर होती है। तो डॉक्टर बेसिकली क्या करते हैं कि जो 44 क्रोमोसोम है ना, उसमें से उसकी पिक्चर दिखाते हैं, जो 44 जो आपका जो सेक्स क्रोमोसोम है 2, उसको कवर कर देते हैं, सो कि ताकि उसको पता न चले। मतलब अगर डॉक्टर को ये चीज पता है ना, तो वो बेसिकली ये करते हैं कि मतलब 46 जो है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है इम्पोर्टेंट भी होता है, लेकिन डॉक्टर्स को बेसिकली पता ही होता है, क्योंकि उन्होंने वो जो अगर ये वाला टेस्ट हो, तो अगर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट है, तो वो क्या करते हैं, उन जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, क्योंकि अगर XX होगा तो गर्ल चाइल्ड होगा, XY होगा तो बॉय चाइल्ड होगा, तो वो वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं उसकी वहां से उसको कवर कर देते हैं, बाकी 46 जो है वो बताते हैं कि ये वाला डिसऑर्डर्स है। ओके ओके, पर देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, एक एमिनो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एमिनो सिंथेसिस जो है उसमें तो प्रॉपर्ली पता चलता है कि सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, इसलिए एमिनो सिंथेसिस का प्रोसेस भी अब जो है वो बंद किया हुआ है, वो भी बैन किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब उसने क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसने क्या, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो आपको पता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, उसको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हो, एसटीडीज और वेनेरियल डिजीज बोलते हो। एंड इसमें आती है बैक्टीरियल डिजीजेस भी होती है और वायरल भी हैं। ओके, बैक्टीरियल डिजीज भी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है इट कैन बी वायरल आल्सो। ओके, बट इसमें नंबर ऑफ डिजीज है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ओके, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द HIV जो है, HIV एड्स। ठीक है, HIV इज द वायरस, द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एड्स है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें क्या है कि दिस इज नॉट अ डिजीज, ओके, इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स द कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। ओके, एड्स एक ऐसी चीज है जिसमें HIV वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो वायरस जो है काफी टाइम तक बॉडी में साइलेंट रहता है। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम, काफी ईयर्स के बाद जो है, जल्दी भी कर सकता है बट सम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बॉडी में साइलेंट रहेगा।
फिर वो डिवाइड करता है, जब क्वांटिटी मतलब मल्टीप्लाई करेगा बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करता जाएगा, एक स्टेज पे आएगी जब इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाएगा कि तब वो एड्स कॉज करता है, ठीक है। तो HIV जो वायरस है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, साइलेंट, मतलब बॉडी में है, मल्टीप्लाई भी किया बट साइलेंट है, वो अफेक्ट नहीं कर रहा बॉडी को। तो एक स्टेज आती है जब वो बड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर वो बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। और वो अफेक्ट किसको करता है, जो ये वाला, ये जो एड्स है, ये अफेक्ट करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ठीक है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और यू नो कि अगर इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा तो कोई भी डिजीज है, इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी डिजीज जो है, अगर आपको नॉर्मल कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो वो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट कवर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो एड्स है, इट इज अ सिंड्रोम, इट इज नॉट अ डिजीज। सिंड्रोम मीन्स द कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। तो इसमें फीवर भी हो जाता है, कोल्ड भी होता है, सारी डिजीजेस जो है वो हो सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं है, और जब इम्यून सिस्टम प्रॉपरली नहीं है तो एनी डिजीज कैन कम। Okay, and this virus will suppress the immune mechanism of the body and make the body susceptible to any disease. Susceptible means prone to diseases. तो बॉडी क्या हो जाती है, prone to disease, मतलब जो चीज नहीं भी, जो जिससे बॉडी प्रोटेक्ट कर भी सकती है उससे भी नहीं करेगी, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम नहीं है। ओके, इम्यून सिस्टम मीन यू नो कि इम्यून सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, और अगर बॉडी एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस नहीं करेगी, यू नो कि हम पूरे दिन में बड़ी सारी चीजों को जो है, जैसे कोरोना वायरस को ही ले लो, तो कोरोना वायरस जो है बड़े सारे लोगों के अंदर हो सकता है, कैरियर बड़े सारे लोग हैं, बट जो डिजीज है वो लिमिटेड है। हर बंदा, मतलब बड़े सारे जो लोग हैं दुनिया में, वो कैरियर होंगे। ओके, कैरियर का मतलब ये है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो कैरियर हो सकते हैं, उनमें डिजीज नहीं होगी। ओके, बट वो दूसरे वाले को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है दूसरा बंदा जो है, दूसरा पर्सन जो है वो वीक हो, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो, तो उसके अंदर वो हो जाएगा। ओके, तो वायरस का ये सिस्टम होता है। An AIDS patient dies due to other infection in the body because his body has no ability to fight against any infection. Medicine generally become ineffective on the body of the AIDS patient as the body immune system very low. Immunity जो है बॉडी की लो हो जाती है, और ये फॉलोइंग वे से जो है ट्रांसफर हो सकता है: सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, transfusion of AIDS infected blood, or use of needles, infected needles, and transfer of HIV during pregnancy. Pregnancy अगर मदर को है तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है ट्रांसफर द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस। ओके, प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये ट्रांसफर हो सकता है वायरस। ओके, सो क्लियर? Yes, Yes, ma'am. anything you want to ask? Yes, everyone, just tell me if any doubt is there. Those who want to ask, just ask first. Please tell me any question is there. Girls, are you listening? No. Okay. So can I end the session? Ma'am. Yes, Okay. ma'am. So you all can left the class. Leave the class now. Leave the class.